Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video and daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. So we'll cover the most important news that has been reported for the day, and additionally I'll be also providing some supplement content that would be relevant for the examination and helpful for you in the prelims and mains examination. So let's get started. So these are the list of the topics for the day. Today is 3rd of December. The first topic is global alert and the global, basically this is regarding the global alert on the vaccine frauds. The second topic is Britain approve Pfizer COVID-19 vaccines. The third is farmer demand for the special session of the parliament. Now the fourth is India stand on the line of actual control. And the last is agriculture liberalization and government subsidies. So this is an editorial that is in concern for many other enterprises also कि क्या क्या गवर्नमेंट सब्सिडीज़ क्यों होनी चाहिए और जिस तरह से लिबरलाइजेशन की बात की जा रही है एग्रीकल्चर में वहाँ पे सब्सिडीज़ का कितना अहम रोल हो सकता है. Apart from this, I'll be also discussing some MCQs question at the end of this video and the explanation of yesterday questions. So let's get started. So the first topic, that is global alert on the vaccine fraud. So this is a report that is coming, like if fraud has been reported, किस तरह से इसको we have to handle. So Interpol is looking after it. So this is a news that would be relevant for your general studies paper 2 per se, and some parts here and there may be again relevant for the prelims examination. So recently, the Interpol has warned the advertiser promoting drug company that there are many fake drug and services that are being portrayed online, and Interpol has issued a global alert that कि जो भी law enforcement agencies हैं 194 member countries के उनको इस सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, and they need to prepare the targeting of COVID-19 vaccine both physically and online. सो व्हाट इंटरपोल एग्जैक्टली मीन कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सारी चीज़ों को ट्रैक करें कि किसी भी तरह से जो फॉल्स या जो फेक ड्रग्स है वो मार्केट में ना आ पाए, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क, एंड इंटरपोल हैज ऑल्सो बिन highlighted the need that अभी जो भी member countries हैं they need to take all the precaution measure before the actual vaccine come into the place. So they have highlighted कि एक organized crime जो है that is taking place, that would take place in future. Now there are before we proceed other details, you need to understand what is Interpol. This is not there in the newspaper, but from examination perspective this is important. तो इंटरपोल जो है दैट स्टैंड लाइक इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्प करती है बिटवीन कोऑर्डिनेटिंग पुलिस फोर्सेस एंड 194 मेंबर कंट्रीज जो भी इसके मेंबर्स हैं. नाउ ईच मेंबर कंट्रीज होस्ट एंड इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो. हर एक कंट्री को अपने कंट्री का एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो डेजिग्नेट करना पड़ता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. Now, इंडिया की अगर बात करें तो इन इंडिया वी हैव सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो CBI है, दैट इज डेजिग्नेटेड एज द नेशनल सेंटर फॉर ब्यूरो इन इंडिया, एंड देयर कनेक्ट्स देयर नेशनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड अदर कंट्री विद द जनरल सेक्रेटेरिएट ऑफ द इंटरपोल. बात करें अगर जनरल सेक्रेटेरिएट की तो ये प्रोवाइड करती है रेंज ऑफ एक्सपर्टीज एंड सर्विसेज टू द मेंबर कंट्रीज, और इसकी जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन लियोन इन फ्रांस. So headquarter many a times in different examination they can ask you where is the headquarter located of the Interpol. Now before we proceed about the other news, it is equally important कि आप ये जान लें कि इंटरपोल की कौन कौन से नोटिसेस होते हैं जो इंटरपोल देती हैं. The first is red notice. This is regarding to the wanted person. If person is wanted in any of the activities like terrorism activities, any economic fraud, so a red corner notice or red notice is being issued by the Interpol. Now the second is yellow notice. This is basically for the missing people, the people who are missing. Now the third is blue notice. This is for additional information. If any additional information is required, they would be issuing blue notice. Now the fourth is black notice. This is for an unidentified bodies that Interpol used to give the black notices. Now the other is green notice. This is a warning and intelligence related issues. Now other is ऑरेंज नोटिस. दिस इज एन इमिनेंट थ्रेट. तो अभी जो इंटरपोल ने वैक्सीन को लेकर के जो एक थ्रेट, एक जो नोटिस जारी किया है, दे हैव कैटेगराइज इन द ऑरेंज कैटेगरी. नाउ एक लास्ट कैटेगरी ऑफ नोटिस है दैट इज कॉल्ड
पर्पल नोटिस होती है मोडस ऑपरेंडी, जो है कोई भी ऐसे स्पेसिफिक मेथड ऑफ ऑपरेशंस हैं जो होने वाले हैं, जो कि हैबिचुअल वे ऑफ ऑपरेटिंग में है. दिस इज फॉर दिस इंटरपोल यूज टू गिव पर्पल नोटिस. सो दीज आर द 7 इंटरपोल इंपॉर्टेंट नोटिसेस दैट इंटरपोल यूज टू इशू. कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में दे कैन आस्क यू कि कौन से स्पेसिफिक नोटिस किस पर्पस के लिए इशू किए जाते हैं. So you can pause this video or you can take a screenshot of it so that you can learn all these things. Now coming to the other part, that is talking about the orange notice which Interpol has issued. So we'll be discussing the Interpol ने जो orange notice issue किए हैं. So Interpol has issued an orange notice which underline the potential crime activity in relation to the falsification, theft, इलीगल एक्टिविटीज जो कोविड-19 फ्लू वैक्सीन के रिगार्डिंग हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए दे हैव इशूड द ऑरेंज नोटिस. नाउ दिस नोटिस इंक्लूड द क्राइम इन विच द इंडिविजुअल वर फाउंड टू बी एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द फेक वैक्सीन्स, राइट. सो दिस हैज बीन रिपोर्टेड. ऐसा नहीं कि इंटरपोल ने कोई फ्यूचर प्रोजेक्शंस किए हैं. द थिंग्स हैज बीन रिपोर्टेड. दैट इज वाई इंटरपोल का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में जितने भी मेंबर कंट्रीज है दे कुड टेक प्रिकॉशन आउट ऑफ इट. Now the alert was also issued on the same day. UK authorities ने कोविड-19 वैक्सीन के जो नेक्स्ट यूजेज अभी फाइजर को रिसेंटली अप्रूवल मिली है कि इमरजेंसी केसेस में वो वैक्सीन को एडमिनिस्टर कर सकेंगे. तो आने वाले समय में और ऐसे इंडिया की अगर बात करें तो हमारे पास 3 डोमेस्टिक अपने ऐसे फेज 3 ट्रायल में चल रहे हैं. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, कोवैक्सीन है, कोवशील्ड है. ये सारे जो वैक्सीन हैं ऑलरेडी बहुत जल्दी फरवरी मार्च तक इंडिया में भी आ जाएंगे. तो इसकी जो मैल प्रैक्टिसेस हैं उसके लिए दिस इज समथिंग अ क्वेश्चन हैज बीन गिवन बाय द Interpol. Now promoting safety, it is equally important कि जो global distribution of vaccine होगा that should ensure safety and supply chain, identifying any illicit website selling the fake products, because government would ultimately authorize the person who can have the vaccine distribution, storage and administrating facilities. Now the need of coordination between the law enforcement and the head regulatory bodies would play a vital role, क्योंकि यहाँ पे safety भी बहुत ज़रूरी है. एक individual की well-being of the community should be protected, right? So this the challenge with the government is about to come and they have to adequately prepare for it. Now with the cases of COVID-19 related frauds increasing, the agency has advised people to take special care. जहाँ पे ऑनलाइन सर्च या ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट्स को वो कहीं भी तरह से परचेज ना करें. ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑथोराइज सेंटर्स or the medical hospital who are designated to go with the COVID-19 vaccine can be taken into the priority. और कहीं से भी परचेज ऑनलाइन नहीं करनी है इसको. So this is on the part of the promoting safety. Now coming to the other news, that is Britain has approved the Pfizer COVID-19 vaccine. This news is there in the Hindu. So this is a good news regarding the approval of the vaccine, and this is important for your prelims examination, and in general studies this would be relevant for the general studies paper 3. So the Britain medicine regulator, वहाँ पे जो ब्रिटेन की मेडिसिन रेगुलेटर है उसका नाम है MHRA, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटर एजेंसी. जिस तरह से हमारे यहाँ पे ड्रग कंट्रोलर जनरल है, उसके अलावा वी हैव ICMR, राइट. सो दीज आर द रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया, बट इन ब्रिटेन दैट इज MHRA. उन्होंने रिसेंटली फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूवल दी है. And this Pfizer vaccine is developed in close coordination with the Pfizer and BioNTech. BioNTech जर्मनी की कंपनी है. दोनों मिलके इन्होंने वैक्सीन बनाया. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वैक्सीन डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड कि कितनी जल्दी कोई वैक्सीन बनी है विद इन 10 months, जबकि यूजुअली अ वैक्सीन टेक अ स्पैन ऑफ 10 years to develop. So you can see the urgency and the need of the hour. No, the efficacy of the vaccine is very important. At the same time, the adverse consequences would not be allowed in any cases. किसी भी तरह से कोई भी ऐसे, इसीलिए फेजेस कितने ट्रायल किए जा रहे हैं, फेज 3 तक ट्रायल हो रहे हैं ताकि कहीं भी कोई चूक ना रह जाए. So 10 months also is commendable for the company like Pfizer or any other company who are aligned and working day and night to develop the vaccine. The work should be definitely getting commended. Now the Prime Minister of Britain have touted a green light for the UK Medicine Authority. उन्होंने एक global win, एक ray of hope दिखाया है during this time of pandemic, and this is for the first time in the world that a vaccine has developed within 10 months, right?
नाउ कमिंग टू द फर्स्ट एवर mRNA वैक्सीन अप्रूवल, और ये पहली बार होगा जब किसी mRNA जो राइबोन्यूक्लिक एसिड वैक्सीन है दैट हैज गेट अप्रूव्ड. So an mRNA vaccine have never been approved for the use for the human before, although people have received them in the clinical trials. Clinical trials में तो दिए गए, बट जो फाइजर है mRNA बेस्ड है, एंड इस तरह की वैक्सीन पहली बार लोगों को, पेशेंट्स को दिए जाएंगे. Now, the Pfizer BioNTech was the first vaccine to be published positive results earlier the final stage of testing. And talking about the efficacy, I have already told you कि क्या efficacy rate रही थी. So it was reported कि 94.5% की जो efficacy rate है वो Pfizer के वैक्सीन ने दिखाया है, right? Now coming to the other point, talking about the efficacy, उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि जो ट्रायल्स हैं, बेसिकली ट्रायल्स के दो इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं. जो वैक्सीन की जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जो वैक्सीन लगाए जाएंगे, 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन वुड बी देयर. सो दिस वुड बी द फुल इम्यूनिटी. ये मैं फाइजर वैक्सीन की बात कर रहा हूँ. सो द फर्स्ट वैक्सीन डोज वुड बी देयर ऑन द डे फर्स्ट. दिस वुड स्टार्ट बाय बिल्डिंग द इम्यूनिटी. 12 डे में उसकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी. नाउ द सेकेंड डोज वुड बी एडमिनिस्ट्रेड ऑन द 21 डे, और उसकी जो फुल इम्यूनिटी होगी दैट वुड बी देयर फॉर द 28 डे. सो ऑलमोस्ट to get a full immunity out of a vaccine, it would take none less than 28 days. तो ये कई लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है. सो मेक श्योर दैट आप कहीं तरह से मिसगाइड ना हो. तो एक वैक्सीन अगर आपने डे फर्स्ट में लगाया है तो उसकी जो फुल इम्यूनिटी है वो आपको 28 दिन में जाकर के मिलेगी, 28 डेज में. सो इट टेक अ मंथ टू मेक इट्स वर्किंग फुल्ली पोटेंशियल, राइट? Now coming to the emergency uses of approval, because जो MHRA है, जो मेडिकल हेल्थ एंड प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी है यूके की, उन्होंने अप्रूव किया है ये वैक्सीन जो है फाइजर और भारत जो बायोनटेक है, जो कि जर्मनी की कंपनी है, दे वुड बी एडमिनिस्टर, बिकॉज उसकी जो एफिकेसी रेट है वो 95% है, और इट वुड बी एडमिनिस्टर ऑन द इमरजेंसी पर्पसेस. अभी इमरजेंसी के लिए भी इसको अप्रूव कर दिया गया है यूके में. And both the US and European Union regulator have shifting their same Pfizer vaccine for their trial data, but not have even get approval. तो अप्रूवल अभी नॉर्मल लोगों को देने के लिए मनाही है, बट स्टिल जो इमरजेंसी केसेस होंगे उनके लिए अलाउ कर दिया गया है. जैसे ही फेज 3 के और एडिक्वेट रिजल्ट्स आएंगे, इट वुड बी फाइनली गिवन टू द नॉर्मल सिटीजन एज एन प्रिकॉशनरी मेजर्स. Now coming to the other news, farm demands special session for the parliament. जो फार्मर की जो एजिटेशन चल रही है उसमें कुछ उन्होंने डिमांड किया कि स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाए जाने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ दे आर हैविंग अ डिस्कशन बट नो कंसेंसस हैज बीन मेड. So this is important for your general studies paper 2 in the government programs and policy, paper 3 in the agriculture produce or agriculture activities, and this would be again relevant for your general studies paper 4, जहाँ पे जो case study से related जो सवाल हैं आपसे भी पूछे जा सकते हैं कि इस तरह के education में what would be your stand, right? Now coming to the news, this is the news that is there. So the first is the farmer group have demanded that the center call for a special session to repeal the 3 agriculture law reform. तो जो फार्मर कम्युनिटीज उन्होंने कहा कि एक स्पेशल सेशन लाने की ज़रूरत है, जहाँ पे जो भी 3 एग्रीकल्चर लॉ लाए गए हैं उनको रिपील होनी चाहिए, उनको कैंसिल करना चाहिए. नाउ कमिंग टू द डिमांड फॉर नेगोशिएशन, क्या क्या डिमांड किए गए हैं, उन्होंने क्या कहा, वो फार्मर्स के क्या डिमांड है. सो द फर्स्ट डिमांड इज द डिमांड देयर शुड बी नॉन नेगोशिएबल डिमांड. किसी भी तरह से उनको कोई टर्म्स कंडीशन पे कोई चीज़ पे एग्रीमेंट ना कराया जाए. एंड फार्मर वांट कि जो 3 लॉज हैं उनको रिपील किया जाए. विल टेल यू व्हाट आर द 3 लॉज, आगे मैं आपको एडिटोरियल में बताऊंगा. Now the farm demand a special session of the parliament, एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए इस पे, ताकि अगेन दिस लॉ कैन बी रिपील्ड और उसमें फाइनल किसी भी तरह से आगे कोई एक्शन ना लिया जाए. एंड दे ऑल्सो डिमांड टू लुक इनटू द ग्रीवांसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जो कि इस न्यू लॉ के अंदर होगा. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वुड हैव अ वेरी गुड पावर बॉडीज. सो अकॉर्डिंगली इफ दिस इज रिपील्ड, none of the body would have the power to suppress the farmers or the agriculture elite sectors. Now concerns हैं कुछ फार्मर के. सबसे पहली कंसर्न है कि absence of any regulation in the APMC मंडीज. जो APMC मंडीज नहीं होंगी तो वहाँ पे क्या होगा कि अगेन द कॉर्पोरेट इंटरेस्ट वुड प्रिवेल और फार्मर की जो अपनी जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो कम हो सकती है. Now this is an anti-farmer bill that result in the crop prices of farmer undermine. जो seed security है उसको भी खतरा हो सकता है. Now farmer has also raised a concern regarding the food security that can erode by the government intervention in elimination.
नाउ दिस बिल विल ऑल्सो प्रमोट कि जो कॉर्पोरेट कंट्रोल है इंडियन फूड मार्केट के, वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल हो जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा. Now they would also encourage the hoarding and black marketing because we have seen also previously इस तरह के cases हुए हैं जहाँ पे hoarding और black marketing की गई है intentionally भी. Now the bill also lack any assurances about the MSP. तो अभी के लिए प्रेजेंट में गवर्नमेंट को बस यही करना चाहिए कि जो MSP के जो श्योरिटी है वो एक लीगल बैकिंग दे करके MSP को इंश्योर करना चाहिए ताकि फार्मर की जो एजिटेशन है वो रुक सके. बट गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट ट्राइंग टू गेट एनी स्टेप बैक. But I personally think this would be getting into the another level of agitation, and I personally feel that this will continue for a longer duration, none less than 10-20 days, right? Now coming to the other news, that is India's stand on the line of actual control. India की क्या अपनी stand है? So this is an interview that has been reported in the Hindu, and this would be relevant for a general studies paper 2 in the IR section. सो इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने कहा है कि इंटरव्यू दिया है हिंदू को, वेयर ही सेड दैट चाइना की जो एक्चुअली लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे अभी बहुत सारी बातें नहीं हो पाई है, एंड इट वुड टेक अ लॉन्गर टाइम टू कम इन एनी ऑफ द कंक्लूजन. एंड एडिशनली ही हैव सेड कि चाइना मस्ट टेक अ लॉन्ग व्यू ऑन द बॉर्डर डिस्प्यूट, नॉट जस्ट ऑन द इंसिडेंट बट एट द LAC this year. बहुत ज़्यादा इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है. अगर चाइना चाहे तो इसी साल में 2020 में इट कैन हैव अ रिजोल्यूशन ऑफ इट. Now there have been 8 rounds of military commander negotiation, but still we do not have any concrete result out of it. Now coming to the other part, इस news में कुछ और important बातें जो हैं. So violation of the agreement, the external affairs minister said that the bottom line of the China has violated the past agreement amassing the troop. जो पीस और ट्रैंक्विलिटी जो बॉर्डर में बननी चाहिए, जो बॉर्डर की जो रीजन्स में होनी चाहिए, दैट हैज़ अगेन बिन डिस्ट्रप्टेड. और इंडिया चाइना की जो रिलेशनशिप है इसमें बहुत ज़्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, बिकॉज व्हाट इंडिया डिड, इंडिया ने सारे चाइनीज़ ऐप बैन कर दिए, एंड इंडिया हैज़ ऑल्सो जो इम्पोर्ट्स होनी थी चीज़ों को इंडिया में जो आती थी, दैट हैज़ ऑल्सो बिन बैंडेड. एक्सपोर्ट को भी बंद कर दिया गया. तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज बहुत हाई हैं इसके. Now he also said कि जो Chinese occupational है of land in the Deep Sang and Pongsot also lake जो है वहाँ पे, that is totality जो ground picture में वहाँ पे स्थिति बहुत ही खराब है, and the military deployment is heavy both from the Chinese side and from the Indian side. और इस winter में जहाँ पे temperature almost -50°C होती है, the deployment of the forces is again not very good decision for both of the countries. Now this is a map which will help you understand. We already had a discussion with the map. So यहाँ पे 23 disputed area के आसपास बताई गई है जो कि 3,488 kilometers long है. So you can see this region. This is in Ladakh region where Demchok, Tigri Heights, Demchili, Pongsto, Chumar and Sapungun Gap. So these are the some of the areas. Now अरुणाचल के जो region है वहाँ पे भी कई बार डिस्प्यूट हुई हैं. दीज आर द रीजन. इसमें अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है दिबांग वैली की जो डिस्प्यूट्स है, दैट वाज ऑलरेडी देयर. तो ये जो रीजन है दिस ऑलमोस्ट लाई इन द बटोत्री उत्तराखंड रीजन में भी लाई करती है. सो अभी के टाइम में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, दिस रीजन इज वन ऑफ द सीरियस कंसर्न फॉर इंडिया. Now what will be the way forward? First and the foremost is जो complicated issues हैं इस टाइम पे that need to sort out because there have been 8 level of military talk, commander level talk हो चुकी है, but the conclusion is zero. So long term future plan should be there, and the bottom line is that we should have a strong bilateral agreement that would commit both countries to have a long forces जो कंटिन्यूड है वहाँ पे उसको वापस से मिलिट्री बेस पे लाया जाए, सो दैट कि वहाँ पे कोई जो टेंशन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में दैट शुड नॉट प्रिवेल एनी मोर. Now the second aspect is that कि जो progress है in the bilateral ties that would have much predicted peace on tranquility on the LAC. So it is very important for India and for China कि peace process जो है वो stability को बनाए रखें और military की deployment को कम करें और वहाँ उस रीजन में स्टेबिलिटी को बनाने में कोशिश करें. Now agriculture liberalization and government subsidies. This is an editorial. This is a last topic from Indian Express. So this talks about the recent agitation and dispute that is going. तो ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जैसे मैंने आपको बताया यू कैन यूज़ मेनी टर्म्स एंड फोल्डर पॉइंट हियर इन द essay as well, right? Now coming to the news, what are the other news? First is in September, President gave the assent to the 3 contagious bill of that was passed by the Parliament.
तो ये 3 जो बिल हैं, दैट इज फर्स्ट नोन एज FAPAFS, that is the Farm Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020. The second is FPTC, Farm Produce Trade Commerce Promotion and Facilitation Act. और जो लास्ट थी दैट इज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020. अगर अभी तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ यहाँ पे समझ लें. कभी कर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट विद अदर सेशन एज वेल. सो दिस इज ऑल 3 बिल्स, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आपके एनालिटिकल मेंस में आएंगे. सो मेक श्योर यू नो दिस. तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट बिल्स. नाउ अगर बात करें इस बिल में, तो दिस बिल वे पास्ड बाय द राज्यसभा बाय द वॉइस वोट. ऑलरेडी जब पास की गई थी उस समय भी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट हुई थी कि इसको रिकॉर्डेड डिवीजन में क्यों नहीं लिया गया है और वॉइस वोट से गवर्नमेंट ने इंटेंशनली क्यों पास किया. तो द प्राइमा फेसाई ऑफ दिस बिल वाज सीम नॉट वेरी गुड. नाउ एसेंशियली चेंजिंग द राउंड ऑफ द स्टोर, जहाँ पे सेल, स्टोरेज, प्राइसिंग जो है, जो प्राइवेट प्लेयर्स की होर्डिंग होगी एसेंशियल कमोडिटीज़ में, फ्यूचर सेल्स में, गवर्नमेंट ऑथोराइज एजेंसीज हैं, तो ये सारी चीज़ों को जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो अदर क्लाउजेज हैं उसको भी लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिबेट रहा है. Now the government has claimed that the reform would remove the shackleness of the agriculture sectors. जो फ्री फार्म मार्केट है उसको भी कहीं ना कहीं हद तक दबाया जा रहा है. APMC खत्म करने के बाद जो कॉर्पोरेट की जो डोमिनेशन है मार्केट में वो ज़्यादा हो जाएगी एंड फार्मर वुड नॉट फाइंड एन एडिक्वेट मैकेनिज्म और रिड्रेसल मैकेनिज्म टू हैव देयर ग्रीवांसेस, राइट. Now talking about the farm union concern, कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स बताए गए हैं इस एडिटोरियल में कि क्या कंसर्न्स है फार्मर के. फर्स्ट, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है दैट इज नॉट मेंशन इन द बिल एंड दैट फियर्स कि आने वाले टाइम में इन लॉन्ग ड्यूरेशन जो APMC के ऑप्शंस अगर हटेंगे तो कॉर्पोरेट का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बढ़ सकता है. नाउ सेकेंड, दे एप्रीहेंड कि जो कॉर्पोरेटलाइजेशन है एग्रीकल्चर में दे कुड हैव अनदर इम्पैक्ट, क्योंकि इस तरह से पहले भी देखा गया जैसे रिलायंस और अलग बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ ने ऑलरेडी पहले कोशिश भी की है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के फार्मर्स के साथ, एंड द फार्मर हैज़ टू बार्गेन अ लॉट, राइट, इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग. एंड द फार्मर एप्रीहेंशन इज अबाउट द मंडीज इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट. न्यू लॉ नीड टू एड्रेस दिस. तो ये सारी जो कंसर्न्स हैं वो नए लॉ में एड्रेस होने की ज़रूरत है. एंड इफ नॉट, द 3 लॉ शुड बी रिपील्ड एंड न्यू लॉ should be coming into the action. Now talking about the previous attempt by the corporates, some farmer group in the Punjab has also shut down the stores of the Reliance store in the Reliance Fresh के नाम से जो स्टोर हुई करती थी उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में जो रिलायंस ने एक्सप्रेस किया था अपने इंटरेस्ट को आने के लिए. सो फार्मर वांटेड कि द कॉर्पोरेट शुड नॉट बिगिन दिस एक्टिविटीज़. और 2017 में भी जो एग्रीकल्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर पे भी जो रोड मैप बनाई हुई है रिलायंस जैसे ग्रुप ने, दिस इज नॉट वेरी एडवाइजेबल दैट मोर कॉर्पोरेट हाउसेस शुड कमिंग डायरेक्टली. वो PPP मोड पे आए, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, PPP मोड पे काम कर सकते हैं, बट फुल प्राइवेटाइजेशन और कॉर्पोरेटलाइजेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी और इंडियन एग्रीकल्चर. उसके अलावा अडानी ग्रुप है दैट हैज़ मेड सम इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ एग्री बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इसको लेकर के भी ऐसे 2 कंसर्न हैं जो कि पंजाब के फार्मर्स ने, हरियाणा के फार्मर ने दिखाई है. Now coming to the agriculture liberalization, why should agriculture be not liberalized? यही सबसे बड़ा डिबेट इस एडिटोरियल में लिखा गया है, जहाँ पे अगर यूएस की बात करें तो यूएस लिबरलाइजेशन सब्सिडाइज करता है बहुत ज़्यादा अपने एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को. तो अगर यूएस की बात करें सो दे रिसीव ऑलमोस्ट $46 बिलियन इन द फेडरल सब्सिडीज. वहाँ सब्सिडीज इतनी मिलती है तो इंडिया में क्यों नहीं मिल सकती? व्हाट इज द रीज़न? जब एक डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पे एग्रीकल्चर का डोमिनेंस इतना ज़्यादा नहीं है उसके बावजूद $46 बिलियन की सब्सिडी दे रहा है, तो वाई नॉट इंडिया, राइट? एंड दिस अकाउंट फॉर अबाउट 40% ऑफ द टोटल फार्म इनकम इन द सब्सिडीज. सिमिलरली अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन की जो कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी है दैट स्पेंड एवरेज 54 यूरोज, राइट, उतने अब वो स्पेंड करते हैं सिंस 2006. तो विदाउट सम सपोर्ट ऑफ द स्टेट, द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, पीजेंट वुड नॉट इवन बी मोर वनरेबल, राइट. तो ज़रूरी है कि स्टेट्स के साथ सपोर्ट मिले, सेंटर कोऑर्डिनेट करे और एडिक्वेटली जो फार्मर को सफिशिएंट अमाउंट चाहिए, जो सब्सिडी चाहिए, दैट शुड बी प्रोवाइडेड सो दैट दे कैन ग्रो एंड अल्टीमेटली इफ दे आर ग्रोन. एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन भी है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, वो मैं आपको आगे बताऊंगा. सो 10th एग्रीकल्चर सेंसस की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस 10th एग्रीकल्चर सेक्टर जो 2015-16 में आई थी उनके मुताबिक जो स्मॉल होल्डर्स मार्जिनल फार्मर है दे अकाउंट फॉर 86.2% ऑफ ऑल कल्टिवेटर्स, राइट. और ये टोटल अगर आप बात करोगे तो 126 मिलियन पीपल इसमें इनरोल्ड है.
Now the share of secondary sector in the total employment has been stagnant, 26% पे ये रुकी हुई है. सेकेंडरी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ. वहीं पे एग्रीकल्चर इज प्रोवाइडिंग 41%, राइट. सो यू कैन सी द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट. दिस इज वेरी एसेंशियल कि इस टाइम पे एक ऐसी सेक्टर जो 41% तक एम्प्लॉयमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस सेक्टर को अगर कॉर्पोरेट का खतरा हो तो आने वाले लंबे टाइम तक ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है हमारे जीडीपी को, राइट. एंड जीडीपी शेयर वुड डेफिनेटली डिक्लाइन. द टर्सरी सेक्टर हैज नॉट बीन एबल टू क्रिएट इनफ जॉब. यहाँ पे जो सर्विस सेक्टर है, जो टर्सरी सेक्टर, वहां पे बहुत सारे जॉब्स नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है कोविड-19 के टाइम में. तो गवर्नमेंट नीड टू सी, बिकॉज अभी जिस तरह से लॉकडाउन हुई, फार्मर्स के इनकम बहुत ज़्यादा खराब हुए हैं. एक तरफ तो सरकार बात करती है डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, और वहीं एक तरफ इस तरह के लॉज लाना is not very essential, because ultimately the corporate houses would be getting benefit of it, right? So the first and foremost thing is कि जो MSP का जो issues है, that should be giving a legal backing, और जो भी farmer की concern है, that should be there in the close coordination with the farmer union, because agriculture in general is a state subject, और state subject में जो state की stand है वो बहुत ही ज़्यादा important है. Now coming to the answers, यहाँ पे जो कल के questions थे उसके मैं आपको आंसर बता दूँ. So for the first question, the correct answer here is A, that the placement of image of the river goddess that is usually found in the entrance of Garbhagriha in the Nagara temple. And statement 2 is incorrect, that the Dwarpalas are usually found in the gateways or Gopuram of the Dravidian temple, right? So this is something which I have taken from the NCERT class 11. फाइन आर्ट की बुक्स है, उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं. स्पेक्ट्रम की बुक है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं. Now coming to the second question, the correct option here is A, that the intercreator agreement, जिसको सशक्त प्लान भी कहते हैं, was approved by the government to address the problem of resolving bad loan. Or according to the agreement, the majority representing 2/3 of the loan within the consortium, sufficient override objections resolution would be provided. और statement 2 जो है वो incorrect है, that the intercreated agreement aimed at resolving the loan, the size of the rupees 50 crore and under the control of the group of lenders. So this is from the Hindu and Business Standard. Now coming to the MCQs question of the day. The first question is from the Indian polity. Consider the following statement. Following freedom to manage religious affairs is available to both citizen and foreigners. No citizen would be compelled by the state to pay taxes for the promotion or maintenance of particular religious or religious institutions. So you have to just choose the correct option, A, B, C or D. Whatever you feel is the correct answer, you can write your answer in the comment section down below. Now moving to the second question, this is from geography. Exogenic and endogenic process constantly shape the interior of the earth, and the gravitational force is uniform in the different latitudes. So if you know, these are the two independent statements. If you have any additional information that you want to share with us, you can share in the comment section down below, or you can directly write your answer in the ABCD so that we could know how many of you are participating, right? And if you are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.